শুভ সন্ধ্যা। আজ ভ্যানগার্ড নিউজ চ্যানেলে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন অনুজ ধর। অনুজ ধর সম্পর্কে বিশেষ বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকে তিনি সারা ভারতবর্ষে শুধু নয়, সমস্ত পৃথিবী জুড়েই একটি পরিচিত নাম। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে যে মিস্ট্রি নিয়ে যে কাজ হয়েছে সেটা উনি করেছেন। তার নেতৃত্বে মিশন নেতাজির উপর যারা আছেন তার বন্ধুবান্ধবরা মিলে কাজ করেছেন। আজকে মোটামুটি আমরা সবাই বিশ্বাস করি, তার রিসার্চের কারণেই আমরা বিশ্বাস করি যে নেতাজি প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাননি। তিনি গুমনামি বাবা হিসাবে ছিলেন, ভারতবর্ষেই ছিলেন। অনেকগুলো বই লিখেছেন। তার অনুজ ধরের বইয়ের উপর গুমনামি ছবিটি হয়েছে, আপনারা সবাই দেখেছেন। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু রহস্য নিয়ে তিনি বই লিখেছেন, ইউর প্রাইম মিনিস্টার ইজ ড্যাড। এটার উপরও বই হয়েছে, আপনারা সিনেমা হয়েছে, আপনারা দেখেছেন, তাশকান্ত ফাইল। তো আজকে অনুজ ধর আমাদের মধ্যে এখানে উপস্থিত, আগরতলাতে উপস্থিত। তার সঙ্গে আমরা আজকে একটু কথা বলবো, কিছু জেনে নেব উনি কি বলছেন। এই মুহূর্তে নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য কোন পর্যায়ে আছে, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মৃত্যু রহস্য সম্পর্কে তিনি কি বলবেন, এসব আমরা শুনব। অনুজ, welcome to Tripura. Manas, I'm very happy to have come back after so many years. तो I think it's the second time you are here. Second time मैं 15 में आया था, तभी आपसे बात हुई, वैनगार्ड पे हम लोग बात की, तो मैं बहुत समय हो गया, लेकिन 5-6 साल बाद वापस आए। 15 के बाद में it's always enriching to listen to you when you speak about Netaji, when you speak about Lal Bahadur Shastri and all. It really it enriches us very much. दादा डिपेंड ये भी करता है ना कि ऑडियंस कितना रिसेप्टिव है। तो यहाँ का ऑडियंस जो है ना वो काफी रिसेप्टिव है, वो जानना चाहता है। हर जगह एक्सपीरियंस में आपने देखा था कि लोगों ने कैसे, ऑडियंस ने कैसा रिस्पांस दिया था। जो पिछले बार लेक्चर हुआ तो लोग कितना देर यहाँ बैठे रहे, सुनते रहे, सवाल जवाब हुए करके, उसी की उम्मीद हम कल कर रहे हैं। तो वो ये डिपेंड, तो ये जो लेक्चर्स, जो प्रेजेंटेशन होती हैं, ये 2 वे स्ट्रीट होता है कि ना केवल ऑडियंस को भी इंटरेस्ट दिखाना होता है और स्पीकर को इंटरेस्ट दिखाना। क्योंकि मेरे कोई पॉलिटिकल लेक्चर तो होते नहीं है, जो भी आएगा सुनने के लिए आएगा। हम लोग तो क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है कि पैसा खाने की, पैसे का लालच लेकर लोग तो बुलाते नहीं हैं लोगों को। तो यहाँ आने में मुझे आनंद आता है। पिछली बार बहुत अच्छा लगा था, उम्मीद करता हूँ कल भी बहुत अच्छा रहेगा यहाँ। Recently you are in USA and of course you visit all the IITs and IITs and all these big institutions and academic schools and colleges and all. And recently I heard that you are in USA also. How was the experience there? How many people over there are really interested about Netaji, his disappearance mystery and all? Manas, wherever you go in India, from Jammu to Kerala, you have people who are very keen about this. On average, everybody in India, every second, third person wants to know what happened to Netaji, and you would be very happy to know this. The interest among the young people is far more than the middle age and the elderly. So that is that is uniform across the country. People are very keen, and when I went to US for the 4th time, it is the same. I mean, the Indians living there are as Indians as we are here, and in fact they are sometimes even more Indian than we are. Right. So the interest probably is more. I mean, because they don't very often get people from India to come over and give lectures on such issues. So I would say yes, I'm very happy, I'm very delighted, because my talks, in terms of numbers, in terms of like having a talk here in India, I would get like 500,000 people. But America, you don't get 500,000 people. It's not. Right. It's very difficult. You get a much smaller number. But then in terms of numbers, I have done more talks in America than in India, because in America I've done like. You see this. So I'm very happy. I keep going, and I'm very happy because people of Indian origin, no matter where they are. Netaji is such a popular figure in our history. Netaji's disappearance, it did happen officially and all a long time ago, but all of a sudden you see this for the last 15 years or 16 years that we have seen that kind of interest that has grown up. Don't you think that this book is, as far as I understand, it is one of the most researched book, India's biggest cover-up that you have authored. It did play a great role for exciting or inciting this curiosity. You're partly correct. What actually happened was this book is the result of what
was, what we started to do beginning 2005. So back in 2005, myself and some other people got together on internet. But today on internet, you've got social media, you've got, Facebook, Twitter, and there are various ways people can communicate with each other. You can even call somebody up on WhatsApp. So we did not have all these things back then in 2005. We used to have Yahoo chat rooms. Right. So it's very primitive thing. So you and I can understand, but young people may not be able to understand what is a Yahoo chat Yahoo room. or Hotmail and Hotmail, no, Yahoo chat room. Yahoo chat, yes. Chat, you can actually go and do right. chatting. Chatting and all chatting. that. Just like sending WhatsApp Right, messages. messages. So some people got together because I was active, because I was already interested in Netaji, and others got together. So a nucleus was formed, and this group was, myself, Chandrachud Ghosh, Shantanu Das Gupta, Vishal Sharma, and Srijit Panekar. So we thought of doing something about this, and then we formed a group, and Srijit Panekar gave it a name, Mission Netaji. Now Srijit today, of course you know about him. He is the superstar of Malayalam TV debates. So he's every day from 6 to 10, he's on all Malayalam. So he's a very, very, among all of us, he's the most famous person right now, because he's all over channels every single day. So we got together, we formed this group, and we thought we have to do something about this Netaji issue. And because it was very difficult to talk about it, because people had forgotten, this is such an old story, and media was not paying attention. Even if they were, the story was not given its due space. In papers, it used to come on the 7th page, Sunday edition or something of that sort. So we thought we have to reinvent the issue, do something so that people take interest. And luckily for us, in 2005, Government of India enacted the Right to Information Act. So this idea came out of brainstorming, among us, and then Chandrachud proposed that we should use the RTI to do something about Netaji. And initially I was not in favor of it, but then I realized it actually will click, because if government were to deny information, that will probably make better news. Yeah. Because denial of information will give rise to suspicions. Right. So exactly what happened. So we started, because of RTI, we began collecting information, and also the story started making news all over the world. This book was a result of whatever we could collect RTI, not only in India but abroad also. And this was the result. I've gone through these books. I think many of other friends have also already gone through. But this book was written in 2011, and it was of course far different from any other book on Netaji death mystery written at any point of time. It's a totally different book. Totally different. I mean, of course, one thing, I was always focused on how to resolve the case. My job is not to tell you that this is a mystery about it, but also to find the solution to the problem. It's a problem. So solution I had outlined in this book, that we have to take certain steps, and one of them was declassification. So I talked about this is how you should declassify the files now. So this became the blueprint. We'll come to the declassification later. But I am also interested to know about these films that are being released nowadays based on your book and your research. Is the primary research are done by you, and these filmmakers, big names, they are getting involved. They are taking interest in it. So these film Gumnami and Tashkent File, these films were made on your research works and all. You are closely associated with them, I believe. So in that case, do you think that these films really helped you in creating some kind of awareness? Oh, a lot. Nobody, I mean, who would have thought, come to think of it, who would have thought one day there would be a film in Bengali on Netaji death mystery, and Prashanjit Chatterjee will be the actor, and Srijit Mukherjee will direct the film, and SVF will produce the film. These are the best names in the Bengali film industry today. Now, who would have thought? I mean, we never thought that this would be possible. And then the movie became a runaway hit, and I remember I was part of the premiere in Calcutta. People were crying after seeing the film. Then after a couple of days I was in America, and I saw the movie in America also, in Virginia. People were crying there actually, watching it. So this was the impact it had. So it has been a huge, tremendous boost to what we have done. And likewise, the Tashkent Files, which was the Vivek Agnihotri-ji's ideas, and I provided my inputs in the movie. And that also had a huge, tremendous impact on public side, So I think these two films have done a lot. Now, especially, a lot of young people who were not aware of these issues, of these controversies, thanks to these films have become available, and the movies will be, watched for another 50 years to come. So these have been great. And in fact, since it's made in Bengali and it's a film, I think the rural people, rural Bengali populace,
are also getting involved, emotionally involved. They are You would be trying- surprised to know that not only Bengalis, I think the Gumnami is the most watched Bengali film by non-Bengalis. Acha. So I was in Florida. I went to a gathering of the Gujarati old gentlemen, and these people have been living in America for many years now. So we were talking about, and at least two elderly Gujarati gentlemen told me we have seen Gumnami. Okay. So people And, across the country are watching this film, and so when it comes to Netaji, language is not a barrier actually. So coming back to declassification, that is a very important part of your research and your activities. Now, after your all these books and your activities, all these things, I think the government has declassified some of the papers, Yes. Netaji related papers, after this Narendra Modi government came and all. But I believe, and I also read from your articles and all, that many more papers are still not declassified. They are still held very, confidential, quote unquote, very, this top level confidential. Now, where do you stand at this point as far as declassification of Netaji related papers are You would concerned? recall the very famous quote by Donald Rumsfeld, the American Secretary of Defense. So there are things which are known, and known, unknown, and unknown. So the files which have been released are in the categories of known. The files whose existence we had known for all these files, for all these years. There's another category of files whose existence we know, but they have not been made public. Now, for example, about 77 odd files of the IB whose listing is available, but these files have not been released. I'm not saying that these files will release once released will clear all the Mystery. doubts. No, it will not. But still, so there are 77 odd files with the IB which have not been released, or maybe less, or let's say 70 odd files. Then going by other calculations, there are certain files whose existence we cannot prove, but they must be there. For example, when the so-called Gumnami Baba died, even the American CIA took note of it. Okay. So I cannot imagine that the IB did not take note of such an incident. So there must be some papers with IB on Gumnami Baba, but they are not accepting they have any records. What I have heard, and in fact I read from you, is that this IB was actually having some kind of surveillance on Gumnami Baba from the very beginning. That is what we have, not the beginning, but at least for the last couple of years when this person was there. It's a very open and shut case that there was some kind of a surveillance or some kind of security or some kind of a cover was given. Okay. So I'm sure of it. I mean, for whatever I can say on the record or off the record, the IB was aware of it. So there must be records about him in the IB. And to answer the second part of your question, the government of India has released files which were in the PMO, MHA and MEA, but they have not released the intelligence files. And from the day one, in this book also, we have been talking about the necessity of releasing first and foremost the intelligence files. So because this files. entire issue of Netaji is in the remit of intelligence. And this very recently, Calcutta's, the forensic laboratory, they have declined to disclose the reports of the DNA. That is what we have read in the newspapers and all. As far as Netaji's DNA test, these are concerned. What do you stand? What's all about? The story is a bit long, but you must pay attention. It's a very interesting story. The story is like this, that the claim that Gumnami Baba, so-called, was not Netaji, what is the basic evidence against this particular theory? If there's a claim that he was Netaji, what is the basic evidence against it? The evidence is that the handwriting and DNA reports produced by the government labs were negative. This is essentially the main reason why we should not believe in the Gumnami Baba story. Otherwise, the eyewitness account and the documentary evidence is showing that he was Netaji. So this is why Justice Mukherjee Commission could not draw any conclusion, and they had to write in the report, Justice Mukherjee had to write, that there was no clinching evidence that Gumnami Baba was Netaji because the DNA and handwriting is not matching according to the government labs. Now, after Justice Mukherjee was no longer the heading the Commission of Inquiry, so we met him several times. He was also a human being. And beginning 2006 and till about his death, which is last year, 2021, he told my friends and others several times that there was something wrong and these reports were fudged by government. So he did not believe the government's reports and he could not prove it. But he said, I don't believe it, and he was of the view that this Gumnami Baba was Netaji, but I could not prove it because of these negative reports. Now we have clear evidence that the reports were fudged and Justice Mukherjee was right.
In the context of the DNA testing, in lay person terms, No, okay, 1 minute. As far as handwriting is concerned, is that it that one American handwriting expert that is what and one some Mandal from Calcutta, one this. whenever an expert of handwriting it gives a report, and especially when the case is very important, we would expect the expert to give some reasoning why he or she thinks that the report is matching or not matching. Not matching. So I expect some Yeah, details by the expert. Something should be there. Explanation should be there. Especially when the case is so important. It's not an ordinary case. So Dr. S.K. Mandal, who was the handwriting expert for the FSL Calcutta, I believe he retired as a director later on. So he gave a report in just 2 pages. And first page is the format where they have given the name of the lab and all that. And second page, Not matching. Single line not matching, that's all. So we were of course of the opinion that there's something wrong with the report. So that means me and my friends, we got a test done in America. We hired an American expert, independent expert, Kurt Baggett there. And Kurt gave us a very detailed report like... What's his name you said? Kurt Baggett, 48, he lives in Texas. So he gave a detailed report in 40 odd pages. And he has given the entire description. He explained why. And he said the handwriting is matching. I am willing to go before any court of law. And he didn't know that these these papers you are giving belongs to somebody. First of all, he hardly cares about India. He does not know anything about India. He does not care about and he does not know Netaji in that sense. And at that time, we didn't tell him anything. So he was absolutely clueless. We only asked him to check 2 different sets of papers. You check it. No, 2 different. No, we give him multiple papers, but 2 different sets of handwritings. Okay. A and B. So you need to check whether they are matching. A matches with the B. Or does it match or does it not match? That's what he said. They match. 100%. He actually appeared in media. He openly, in fact, a program was arranged on CNN IBN. The old man, he woke him up early in the morning because, the timing of America and India, like almost opposite. So it was about 6 o'clock, in 5 o'clock India time here. Must have been not 6 o'clock in the morning in America. So he appeared early in the morning. The invitation was also sent to Mr. Mandal. Mr. Mandal didn't show up. Okay. So I can take it Mandalji was afraid to show his face before camera. Face Mr. Obviously he cannot face. He don't have the guts. And what he will face? He has given no reason in his report why according to him the handwriting is not matching. Whereas Mr. Kurt Baggett, the video is available on YouTube. Anybody can check. He very confidently answered all the questions. He said, "I'm willing to go before any court of law to answer, to say what I'm saying." So why should I not believe him? So I would believe Mr. Baggett, not Mr. Mandal. So there is one interesting point that I have heard from some of our friends and all, that in 1971, Gumnami Baba was there very much. He was, in his own way, he was active and all. He had some kind of role in 1971 Bangladesh Liberation War. That is what we have heard from some of my friends. If you can elaborate on that, if you have any clue. दादा नहीं प्रॉब्लम क्या है कि हमें सब लोग ये बोलते रहते हैं कि अगर वो नेताजी थे तो नेताजी क्यों छुप करके रहेंगे, नेताजी तो डर के बैठेंगे नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे. तो प्रॉब्लम ये होती है कि लोग हमारी किताब तो पढ़ते नहीं है. तो ये मैंने कभी नहीं बोला कि वो इनएक्टिव थे. अगर आप गुमनामी बाबा ने जो क्लेम किए हैं अपने बारे में कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या हूं, अगर वो सच है तो आपके पढ़ के आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बैठ के ये दावे किए हैं. अब वो दावे कितने सच हैं वो अलग अपने आप में अलग बात है, वो अलग बात है. तो लेकिन उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी वजह से 1962 की लड़ाई में उन्होंने हमारी मदद करी इनडायरेक्टली, 1965 में उनका हाथ था, और 71 में उन्होंने बोला कि मैं उसके जो मास्टरमाइंड थे उसमें से एक मैं भी था. और वो 1900 खुद लिखे हुए हैं, उन्होंने खुद लोगों को बताया, उन्होंने अपने लेटर्स में लिखा है करके. उन्होंने हमारी किताब कनेंड्रम के अंदर हम लोगों ने उनके लेटर्स भी प्रोड्यूस किए, उसमें उन्होंने मेंशन किया. उन्होंने मुक्ति मानी तक का एग्जांपल दिया है कि मैंने उनके बारे में बातचीत करी है. और सबसे कमाल की बात यह है कि 1900 आप समझ सकते हैं, अच्छा उसमें आप त्रिपुरा में बैठ करके यहाँ पे, कि 1963 में जब लोग उनसे मिलने गए थे, उन्होंने तभी से वार्निंग देनी शुरू कर दी थी कि यहाँ पे लाखों लोग यहाँ से बॉर्डर से आने वाले हैं, तो आप वहाँ का ध्यान रखिएगा. तो वो पहले से वार्निंग दे रहे थे, ये होगा ये होगा ये होगा. और मेरे ख्याल से उन्होंने लड़ाई शुरू होने के बहुत महीनों पहले बोल दिया था कि आने वाले समय में ये लिखा जाएगा थोड़े समय के लिए कि ये इलाका एक बहुत थोड़े पीरियड के लिए पाकिस्तान का हिस्सा था. और ये बोला कि चेस का गेम चल रहा है और दुनिया की कोई ताकत इंडिपेंडेंट बांग्लादेश को बनने से नहीं रोक सकती. तो ये बातें मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक साधु महात्मा भारत के कोने में बैठ करके ये बातें वो एडवांस में कैसे बता सकता है. तो ये बात हमको समझ में नहीं आ रही.
और उसके बाद में एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आ रही कि हमें ये समझ में आ रहा है कि इनका कॉन्टैक्ट जो गुमनामी बाबा जिनका नाम लिया जाता है, उनका कॉन्टैक्ट सीताराम ओंकारनाथ ठाकुर महाराज के साथ में था। और सीताराम ओंकारनाथ ठाकुर महाराज के दो बहुत बड़े चेले थे, जनरल सुजान सिंह गुबन और बी एन मलिक जी, जो IB के भोलानाथ मल्लिक जो हमारे NSA टाइप थे उस जमाने में। तो यू स्टिल इन चार्ज। तो इनफैक्ट मैं अभी 2 वीक पहले मैं ओंकारनाथ मिशन के ही मैं वहाँ लेक्चर देने गया था वहाँ पे। तो उनके ओंकारनाथ जी के जो पोते हैं वो मेरे अब मित्र बन गए हैं करके। तो आपको पता होगा कि उबान जो है, आप जानते हैं, SS उबान ने अपनी ही किताब में मेंशन कर दिया है कि 71 की लड़ाई में जो भी मैंने काम किया था उसकी सारी डायरेक्शन मुझे एडवांस में महाराज ओंकारनाथ महाराज ने मेरे को दी थी। तो ये तो लिखित में आ रहा है। हाँ। अब वो आदमी अपने हाथ से लिख रहा है, आर्मी का इतना बड़ा जनरल है। और SS उबन had a big role, particularly as far as वो उबन साहब एडमिट कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने वहां पे काम किया उसके पीछे एक साधु महात्मा का हाथ था। वो और इस साधु महात्मा का कनेक्शन हमारे गुमनामी बाबा के साथ में था। तो ये अपने आप में बहुत 2+2 उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग अगर लंबी बात करेंगे तो निकल के आएंगी। So now where do you stand as far as Netaji mystery is concerned? Well, tell us, are you really optimist? Are you really hopeful that ये निकलेंगे? दादा ऑप्टिमिज्म का ये है कि जब मैं आपसे 5 साल पहले मिला था तो अगर देश में उस टाइम पे मान लीजिए 100 लोग इस केस को जानते थे तो आज वो तादाद हजारों में है। हमारे में इतना फर्क आ गया। कब इतना एडवांटेज हो गया कि मैं अगर अमेरिका के अलग अलग जगह पे जाता हूं तो लोग सुनने के लिए मुझे घंटों घंटों आते हैं। भारत के अलग अलग जगह IITs में जा रहा हूं, मतलब अब आप खुद जानते हैं, आपने खुद दुनिया देखी है कि किसी को सपने में ख्याल नहीं होगा कि MIT बॉस्टन में अमेरिका में लेक्चर होगा सुभाष बोस की डेथ केस के ऊपर, चाहे वो तो वो फर्क तो बहुत पड़ गया। पब्लिक अवेयरनेस बहुत बढ़ गई और अवेयरनेस होने हमारे को बहुत बड़ी भूमिका हमारी ये भगवान भला करे अमेरिकन का, इन लोगों ने ये मोबाइल फोन इंटरनेट बना दिया जिसमें बिना सेंसरशिप के हम बोल सकते हैं। तो जनता जो है वो ज़्यादा जानती है और मेरा मानना ये है कि सरकार कुछ भी कर ले लेकिन आने वाले टाइम पे, और ऑलरेडी अभी लोगों का ये मानना है कि गुमनामी बाबा नेताजी थे और ऐसे जानने वालों की और मानने वालों का नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो ये स्टोरी सरकार के कंट्रोल के बाहर में है। अब वो कुछ नहीं कर सकते। इतना 50-70 साल उन्होंने लगा लिया सुभाष बोस का नाम दबाने में, वो नाम नहीं दबा सके उस जमाने में जब कोई इंटरनेट नहीं था। आज इंटरनेट के ज़माने में जहां मैं आपसे खुल के बातचीत कर सकता हूं तो मुझे लगता नहीं, और खासकर मुझे और खुशी की बात एक और भी है कि मेरे को सुनने वाले ज़्यादातर यंग लोग सुनने आते हैं। इनफैक्ट मैं बड़े बूढ़े सुनने आते नहीं, मैं तो उनको कंप्लेन करता हूं कि आप लोग को आना चाहिए। और जैसे आपने IITs की बात करी, जो लोग मेरे को सुनने के लिए जो सुन के गए हैं वो दुनिया में अलग अलग जगहों पे बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे लगे हुए हैं। अगर so they can play their own role, you know? कोई प्रोफेसर बन गया है, कोई वो बन गया है, कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, कोई गूगल में काम कर रहा है। जो लोग डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े हैं, IIT में जो जाते हैं बहुत दिमाग वाले लोग जाते हैं। तो इसलिए जो मेरे को यंग लोग सुन रहे हैं वो बहुत अच्छी जगह पे लगे। तो मेरा भी बहुत ज़्यादा मेरी भी इतनी कैपेसिटी है कि भारत के ही नहीं, मैं विदेशों के भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंचने की मेरी रुतबा है। वो बात दूसरी है कि अगर मैं अमेरिका में किसी को वोट भी दूं सेनेटर को तो फायदा कुछ है नहीं कि वहां पे केस का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मेरी रीच है। मैं जब लंदन में गया था तो वहां पे मैंने यूके में वहां के ब्रिटिश पार्लियामेंट के MP से बात की थी सुभाष बोस को लेकर के। तो वो ये इसलिए पॉसिबल है कि लोगों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हाँ। तो सरकार का जो रवैया, सरकार का रवैया जो है वो आप ये कह सकते हैं कि नेताजी की डेथ को लेकर के वही रवैया, वो कुछ बताना नहीं चाहते। अच्छा, दिस people are more or less aware about Netaji disappearance mystery and मोटी बात, उनको अवेयरनेस नहीं है। हाँ। अगर किताब मेरी पढ़ी तो पता होगा। हाँ। अगर किसी ने मेरी किताब नहीं पढ़ी है तो ये दिमाग में बांध के रख ले कि उनको नहीं पता किसके बारे में। ये लोगों के दिमाग में एक ये मिथ है कि मुझे नेताजी केस के बारे में पता है। इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सुनाता हूँ कहानी। मैं कहीं अमेरिका में था तो किसी आदमी ने मेरे प्रोग्राम में आया तो उसने मुझे बोला कि हाँ मैंने ये मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 70 के दशक में बंगला में बड़ी सी किताबें लिखी सुभाष बोस के बारे में, उनकी डेथ के बारे में। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने वो किताब पढ़ी हुई है। तो उनका मैंने सवाल पूछा कि आपके पास के जेब में फ़ोन कौन सा है? तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास में iPhone 13 Pro है। तो मैंने कहा आप 2022 में आपकी जेब में लेटेस्ट फ़ोन है iPhone 13 Pro। तो जितना इस फ़ोन में और 1970s के फ़ोन में फ़र्क आ गया है, उस ज़माने में वो काले बड़े बड़े फ़ोन हुआ करते थे घंटी बजाने वाले, तो जितना फ़र्क उस फ़ोन और इस फ़ोन में है उतना ही फ़र्क मेरी किताब में और उस किताब में है
जिसका आप नाम मुझे बता रहे हैं कि सन 70 के बाद से बहुत समय बदल चुका है, तो कृपया करके किताब पढ़िए, इसमें बहुत नया मटेरियल है। हम लोग सन 70 की बातें कहानी सुनाने के लिए बैठे हुए, बहुत कुछ निकल गया। तो मेरा पहला रिक्वेस्ट ये आपके माध्यम से ये था कि अगर किसी ने किताब नहीं पढ़ी है तो वो उसको केस के बारे में पता नहीं। ये केस बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इनफैक्ट आप और मैं अगर 2 घंटा बात करेंगे तो हम सरफेस भी स्क्रैच नहीं कर सकते। और उसको मैंने बहुत तरीके से मैंने उसको बना समझा। इसलिए अगर आप, ये किताब इतना चलता है हमारा कि कोई भी आदमी अमेजन में जाएगा, देखेगा कितने रिव्यूज़ कितने अच्छे आते हैं। तो लोग इसलिए बताएं कि लोगों ने किताबें पढ़ी हैं। आप भी मुझे बात कर दी, आपने मेरी किताब पढ़ी है, इसलिए आपको मेरे बारे में पता है। तो मैं आपसे रिव्यू कि लोग किताब से अच्छा कोई और डिटेल आपको नहीं मिलेगा। और देयर इज वन मोर मिस्ट्री दैट यू हैव आल्सो वर्कड अपॉन, दैट इज मिस्ट्री ऑफ लाल बहादुर शास्त्री's डेथ. That was perhaps 11th January 1966. So a film is also made on it. Tashkent Files. Give us some ideas. You know, people as people know about Netaji. Manas, idea that when I started inquiring about the Netaji case, invariably people would talk about the Shastri Ji issue also. So these, in the minds of average Indian, these are the two most important conspiracy theories in the political realm. Netaji case and the Shastri Ji case. This has been there. And on that, members of the Shastri Ji's family have been alleging, either privately or publicly for quite some time, that their father's case is linked to the Netaji issue. So in that sense, ये जो आप ये समझ सकते हैं कि ये पूरा जो नेताजी वाला केस है, ये पूरा गोला है, पूरा मेन केस है। ये शास्त्री वाला केस उसी का कंपोनेंट है। तो इस तरह का एक फीलिंग निकल गया। तो जब मैं नेताजी की डेथ पे इंक्वायरी कर रहा था, अपने एज ए जर्नलिस्ट मैंने किया, तो बार बार शास्त्री जी का जिक्र आ रहा था। और कई लोग जो शास्त्री जी वाले केस में एक्टिव थे, वो सुभाष वाले केस में एक्टिव हुए थे। तो मैंने उनके पेपर्स पढ़े, देखा उनके बारे में। तो फिर करते करते मेरे को भी थोड़ी इसकी समझ में आ गया। और सूचना के अधिकार में मैंने इस पे हाथ डाला करके। और लेकिन इसमें फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क इस बात पे आता है कि शास्त्री जी जबकि देश के प्रधानमंत्री थे और उसके बारे में इतनी आवाज़ नहीं उठी, और कुछ उठाया लेकिन गवर्नमेंट ने दबा दिया। तो कभी इस पर कोई कमीशन कमेटी नहीं बैठा आज तक, और कोई डॉक्यूमेंट बाहर निकल के नहीं आया। तो नेताजी वाले केस पे आपके पास में हजारों कागज अवेलेबल हैं, ना केवल भारत में जबकि विदेश भी बैठे हुए हैं। कमीशन बैठे हैं, पब्लिक प्रेशर में। गवर्नमेंट का इरादा नहीं था। गवर्नमेंट ने तो बोल दिया था हम मर गए। गवर्नमेंट तो अगर आप इनके हाथ पे छोड़ दो, ये कागज का टुकड़ा निकाल के आपको नहीं देंगे। ये जो भी गवर्नमेंट ने नेताजी को लेके कोई भी एक्शन लिया है, वो पब्लिक प्रेशर में लिया है। नहीं तो इनको नेताजी से कोई मतलब सन 47 के बाद से नहीं था। पब्लिक प्रेशर में आकर इनका नाम लेते हैं, पब्लिक प्रेशर में ये काम करते हैं, चाहे कुछ भी हो। शास्त्री वाले केस में ऐसा प्रेशर कभी नहीं आया और कभी कोई चीज़ बाहर निकल के नहीं आई। इसलिए शास्त्री जी के बारे में हमको काफ़ी कम पता है केस के बारे में। और तो ये सुभाष बोस वाले केस से काफ़ी अलग है जितनी नॉलेज। और इसलिए सुभाष वाले केस में आप क्लियर कट आप उसमें कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। शास्त्री वाले केस में मैंने ड्रॉ किया कंक्लूजन कि मैं कह रहा हूं कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं है, लेकिन मोटा मोटा ये कि ये माना जाता है कि शास्त्री जी वाला केस नेताजी वाले केस का ही हिस्सा है। Can you give us some idea what actually happened? I have read this book, your Prime Minister is dead. I think this is the, this telephone call that came with this word. ये हमारे अपने प्रेम प्रकाश जी जो अपने ANI के जो चेयरमैन अभी भी हैं, हमारे देश के सबसे पुराने ओल्डेस्ट जर्नलिस्ट हैं, सीनियर मोस्ट हमारे इस वक्त। कुलदीप नैयर के जाने के बाद वही सबसे सीनियर होंगे। और ये इनको फोन आया था कि कम डाउन, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड। तो मैंने उनके शब्दों से लेकर के, तो ये प्रेम प्रकाश जी के शब्दों से मैंने ये किताब मुझे कैची नहीं, वेरी कैची, क्योंकि मैं इमीडिएटली इट गिव्स काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, इट इंसाइट्स क्यूरियोसिटी। क्योंकि मैं आपकी तरह पत्रकार रह चुका हूं, तो हमने जर्नलिस्टिक स्टाइल से लिखा है। मैंने थोड़ा सा ड्रामेटाइजेशन, मैं सारे किताबों के नाम मैं ही लिखता हूँ। मैंने ही किताबों के, मेरे को पब्लिशर मना करते थे बीच में कि मत करो, लेकिन मैंने अपनी इंस्टेंट पे कि मैंने ही नाम दिया, ये पब्लिशर का नाम दिया नहीं, मेरा नाम दिया, वही मैंने ही दिया उसका इंडियाज बिगेस्ट कवर अप। तो मेरी जितनी किताबें आई हैं सबके नाम मैंने ही दिए। इट्स ग्रेट, बट दिस इमीडिएटली इट कैचेस द आई एंड इट इनसाइड दिस क्यूरियोसिटी, अब क्यूरियोसिटी देखिए मैंने कैसे केस किया। आपको पता है कि मैं इमोशनली काम नहीं करता हूं, मैं फैक्चुअली काम करता हूं। शास्त्री वाले केस में प्रॉब्लम ये हुई है कि मैंने क्या किया कि मैंने सारा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया एक जगह पे। पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो आप एलिगेशन लगता है कि उनको जहर दिया गया। अब पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं, तो मैं कैसे साबित करूंगा? तो मैंने क्या किया कि पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उनकी फैमिली के द्वारा या और लोगों के द्वारा कि उनको जहर दिया गया, क्या इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं है, तभी मैं केस को आगे लेके जाऊंगा।
तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा किया। जैसे फॉर एग्जांपल कि लाल बहादुर शास्त्री जी, अब ये जो भी सरकार ने स्टेटमेंट दी उस जमाने में पार्लियामेंट में या अदरवाइज, जो भी ऑफिशियली मुझे रिलायबल सोर्सेज से, सरकारी सोर्सेज से मिला, उसको मैं एक जगह लेकर आया कि शास्त्री जी की, उनको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से, ये बात रिकॉर्ड पर है। दूसरा ये कि शास्त्री जी के साथ डॉक्टर थे, उनको कैसे, उनको दर्द रात को 10 तारीख की रात को दर्द हुआ, उनको लोगों ने क्या देखा, डॉक्टर साहब ने क्या दवाई उनको दी, कौन सा इंजेक्शन लगाया, जब डेथ हो गई बॉडी में कौन सी चीज़ उनके डाली गई बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। 11 जनवरी को बहुत ठंड होती है, ताशकंद में माइनस टेम्परेचर होगा, और लकीली वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स जो थी, डेड बॉडी की फ़ोटोग्राफ जो वहाँ ली गई, वो फ़ोटोग्राफ उठाई। उसके बाद उनकी बॉडी को भारत लाया गया। यहाँ पे लकीली किसी बड़े जानी मानी मैगजीन थी, अमेरिकन लाइफ मैगजीन, उसने शास्त्री जी की बॉडी की रंगीन फ़ोटोग्राफ्स ली हैं कुछ घंटे बाद। फिर शास्त्री जी के परिवार ने क्या देखा, उनकी मिसेज जो थी ललिता शास्त्री जी, उन्होंने ज़िंदगी में एक ही बार मुंह खोला था, उन्होंने धार्मिक को इंटरव्यू दिया था अपना। उसके बाद कई लोगों ने बातों को बोला कि वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मेरे पति के शरीर में क्या था, कि शरीर जो फूला हुआ था, उसमें कट के मार्क थे, शरीर ऐसे फूल गया था बड़ी जोर से, कि उनको कपड़े फाड़ने पड़े थे, बनियान निकल नहीं रहा था, और पूरा नीला पड़ गया था, यहाँ पे वो गर्दन में छेद था, खून निकल रहा था करके, और कट के निशान थे, और वटेवर। तो ये जो बातें बताई, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपकी तरह पत्रकार हूँ, हम लोग हम इशू के एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन हमें तारे जोड़ना आता है। ये सारा इकट्ठा करके मैंने बात करी फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट से 10 से। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पोस्टमार्टम वगैरह करना, यही लोग बता सकते हैं कि जहर है कि नहीं है। ये किसी डॉक्टर को बताने का काम नहीं है कि फिजिशियन के। कई लोगों ने मुझसे पहले काम की कि उन्होंने डॉक्टर से बात करी, उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर शास्त्री जी को तो हार्ट के पेशेंट तो हार्ट अटैक हो गया होगा। देखिए वो बात तब की है जब वो जीवित हो, जब आदमी मर जाता है तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अलग होते हैं। तो मैंने 10 डॉक्टर से बात करी, 10 के 10 ने मुझे बोला कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये जहर दिखाई दे रहा है हमारे को। और उसमें से 3 या 4 डॉक्टर, एक तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के रिनाउंड HOD रह चुके हैं वो सब उन्होंने लिखित में कमेंट अपने दिए, क्योंकि हर एक आदमी जो डर के मारे कमेंट देगा नहीं लिखित में। तो लेकिन 3-4 ने मेरे को लिखित में मुझे कमेंट दिए जो मैंने किताब में डाले हैं। उन्होंने रीजनिंग दी है, जैसे उन्होंने बताया कि बॉडी जो है ये गर्मी में फूलती है, और वो भी फूलने के लिए उसको कम से कम 48 घंटे या ज़्यादा चाहिए होते हैं। ये 8-10 घंटे में एक आदमी, प्रधानमंत्री की बॉडी जिसको एम्बाम किया गया और रशिया में एक्सपर्ट के द्वारा में, ये 8-10 घंटे में बॉडी कैसे फूल गई, ये कौन सी साइंस है, इनको समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने डॉक्टरी रीजन बताया उसके अंदर कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो देख करके मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि परिवार जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, ये नॉर्मल डेथ नहीं, नॉर्मल डेथ नहीं। उसके अलावा और भी कारण है कि सरकार ने झूठ बोला पार्लियामेंट में। जैसे सरकार ने अलग अलग झूठ बोले, जैसे आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने पॉइंट वो ये था कि किसी और बात दूसरी है कि सिर्फ ये नहीं है, उस जमाने में कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेताओं ने सवाल उठाए थे। शास्त्री जी का मुद्दा कोई एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, देश का प्रधानमंत्री मरा है। सपोर्टर तो कांग्रेस का मैं भी नहीं हूं, लेकिन बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, इसमें बात प्रधानमंत्री की है। जैसे अभी रिसेंटली जो केस हुआ है कि राजीव गांधी जी के हत्यारों को छोड़ दिया गया, तो उसमें बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। राजीव गांधी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको मारा गया था। तो ऑब्वियसली मैं सेंसिटिव हूं उस बारे में कि राजीव गांधी को पॉलिटिकली मैं सपोर्ट करूं ना करूं, लेकिन वो मेरे देश का प्रधानमंत्री था, हमारे देश का था, हमारा प्रधानमंत्री थे वो। हम उनके मारे जाने के हम पूरे खिलाफ में हैं। बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है देश को। वो पॉलिटिकल चीज़ अलग है, लेकिन सच्चाई और जस्टिस जो है उसमें हम उसमें, चाहे इंदिरा गांधी के बारे में हम 50 गलत बात बोले, लेकिन इंदिरा जी को जब मारा गया उसके कोई हमारे फेवर में नहीं है, हमारी कोई सिंपैथेटिक खालिद सहनी के साथ में नहीं है। हम लोग इंदिरा गांधी जी के साथ में, चाहे हम सपोर्ट करें ना कांग्रेस का ना करें। तो कांग्रेस के ही बहुत लोगों ने सवाल उठाए, जैसे उसमें से एक MP भार्गव नाम के बड़े जाने माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उन्होंने सवाल पूछा पार्लियामेंट में कि मुझे खबर लगी कि रशियन गवर्नमेंट को शक था कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, उन्होंने पोस्टमार्टम आपको ऑफर किया है। तो सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया कि रशियन गवर्नमेंट ने ऑफर नहीं किया। और ये 90 के दशक में आकर के जो उस जमाने का जो होम सेक्रेटरी था, वो रिटायरमेंट के बाद एक किताब लिखता है और गलती से वो ये लिख देता है कि रशियन गवर्नमेंट ने पोस्टमार्टम ऑफर किया। LP सिंह, बहुत जाने माने LP सिंह, लल्लन प्रसाद सिंह जाने माने ICS ऑफिसर थे, वो होम सेक्रेटरी थे, वो ताशकंद में मौजूद थे, और उन्होंने जो लिखा है वो सरकार को सपोर्ट करे, वो गलती से लिख गया उन्होंने। ये उनको शायद पता नहीं था मतलब क्या है कि रशियन गवर्नमेंट ने ऑफर गलती से निकल गया। गवर्नमेंट इज गिवन सम स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट। हाँ, उनको ये नहीं मालूम, वो मैंने पकड़ लिया स्टेटमेंट उनका कि तुमने तो मना की, लेकिन लल्लन प्रसाद सिंह की कह रहा है कि ये पोस्टमार्टम ऑफर हुआ है। तो भैया आपने झूठ क्यों बोला? मैं पूरे के पूरे शास्त्री प्रकरण के अंदर मैं सिर्फ एक लाइन ढूंढ रहा था
अगर एक बार भी भारत सरकार ये बोल देती कि रशियन गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की, उन्हें कुछ नहीं मिला, मैं इस केस को छोड़ देता। प्रॉब्लम ये है, ये इस बात का कहीं जिक्र नहीं कर रहे। जैसे एक बात उछली थी जो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने उछाली थी कि उन्होंने आरोप लगाया था कि जो शास्त्री जी को जो खाना दिया गया उसमें कुछ प्रॉब्लम थी खाने में या दूध में, और उन्होंने एक मोहम्मद जान नाम का जो कुक था, जो भारत के एम्बेसडर टी.एन. कौल, जो इंदिरा गांधी के रिश्तेदार थे, उन पे उन्होंने उंगली उठाई थी बात और लोगों ने। तो सरकार ने उसे क्लीन चिट दी कि नहीं नहीं, हमारे को कोई एडवर्स खबर हमको नहीं मिली, हमें कुछ नहीं मिला, हम क्यों शक करें उसके ऊपर। तो ऐसी बातें बोलेगी। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि 90 के दशक में आकर के वहां से खबरें निकल के आई रशिया में कि वो जो कुक था, रशियन कुक को अरेस्ट किया गया था रात को। तो उसने बोल दिया कि रात को 3 बजे मेरे को अरेस्ट कर लिया केजीबी ने, और उनको शक था कि इसको जहर दिया गया। और बाद में ये इंडियन कुक को भी पकड़ के लेकर आए इंटरोगेशन के लिए। तो पहली बात तो ये कि रशिया वाले खुद मान रहे हैं कि रशियंस को शक हुआ है, कुक्स अरेस्ट हुए हैं। और तीसरा, जो भारतीय कुक था मोहम्मद जान, उसको भी इंटरोगेशन करने के लिए केजीबी लेकर गई थी। तो मोहम्मद जान साहब जो थे वो भारत सरकार के एम्प्लॉय थे, वो टी.एन. कौल से अटैच थे, भारत के एम्बेसडर के। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आप इस बात को समझेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि सरकार को ना पता हो कि हमारे एम्प्लॉय की इंटरोगेशन रशिया में हुई है। तो आपको जब पता है कि उसकी इंटरोगेशन हो चुकी है, रशियंस को डाउट था, तो आप क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? और आपने क्यों नहीं बोला कि हाँ रशिया ने इंक्वायरी कर ली है? तो ऐसे मल्टीपल कारण निकल के आ रहे हैं कि सरकार ने झूठ बोला है पार्लियामेंट में एक के बाद एक, उससे शक। तो ये इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट आई फाइंड, यू सी दिस शास्त्री जी का डेथ हुआ 11 जनवरी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग विदिन 13 डेज होमी जहांगीर भाभा का, और वो जहांगीर भाभा का मैंने देखा, जहांगीर भाभा में तो सबूत नहीं आ रहा, वो तो एक, अगर वो मेरे को लगता नहीं इसमें वो एक्सीडेंट था। मेरा डिडक्शन है कि वो एक्सीडेंट था। मैं उस पर वन CIA ऑफिसर ही हैज सेड इट दैट इट वाज नहीं दादा ऐसा नहीं, वो उसने नहीं कहा है ऐसा। पहली बात तो ये, अगर आप वो पढ़ेंगे, पहली बात तो है कि वो जो जिसका भी वो नाम ले रहे हैं, वो CIA का आदमी खुद नहीं बोल रहा है, कोई और आदमी दावा कर रहा है कि उसने कहा है। इट इज नॉट दैट डायरेक्टर, दैट CIA का आदमी खुद नहीं लिख रहा कहीं किताब में अपनी में, किसी और आदमी ने जो उलूल जुलूल बातें लिखता आया है, उसने बोला कि इसने मुझे कहा था। तो पहली बात तो ये CIA वाले ने बोला। दूसरा ये कि उसके अंदर ना बहुत गाली गलौच उसने करी हुई है। हाँ, आप इस बात को मुझसे अच्छा समझते हैं। आपको पता है कि सीजन जितने इंटेलिजेंस के लोग, खासकर बूढ़े लोग होते हैं, वो कभी गाली गलौच ऐसी बात, वो बड़े प्रोफेशनल आदमी होते हैं, ये उनका स्टाइल नहीं है। किसी सीजन्ड आदमी जो CIA का इतना बड़ा अफसर रह चुका हो, वो कभी गाली गलौच देके बात नहीं करेगा, ना हमारी भी नहीं करेंगे, पाकिस्तान की भी नहीं करेंगे, ये उनकी ट्रेनिंग होती है। तो वो दूसरा कि उसने नहीं कहा, ये किसी और आदमी ने उसके मुंह में शब्द डाल दिए हैं, और जिस आदमी ने उसके मुंह में शब्द डाले हैं वो आदमी जो है धक्यानुसी बातें लिखने का एक्सपर्ट था। तो मैं उसको ध्यान देता नहीं। और भाभा का भी पूरा क्लियर हो गया। भाभा में जो पूरी कहानी फ्लोट की जा रही कि अमेरिकन से मार दे, कंप्लीटली बकवास है। मारना वो भी स्विट्जरलैंड के अंदर पूरे बोइंग जहाज को गिराना मजाक नहीं है। ये मेरे को लगता नहीं इसमें कोई, कम से कम ये बेकार की बात है। एक चीज मैं आपको, कि आपने इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे प्रॉब्लम हमारे देश में हो रही है। एक सोवियत लैंड नाम की मैगजीन आया करती थी, आपको पता होगा, सोवियत एम्बेसी छापा करती थी। उसमें एक लेख छपा है 1990 के आसपास में। लिखने वाला है KGB का फॉर्मर अफसर था कोई। उसने लिखा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जिस कमरे में हमने जगह ठहरने का इंतजाम किया था, हम उनकी जासूसी कर रहे थे, हमने डिवाइसेस बगिंग डिवाइसेस लगा रखे थे। तो जब शास्त्री को चक्कर आया तो हमें मालूम चल गया था, ठीक है। बट दे कुडंट यू नो दिस। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब भारत के विदेश मंत्रालय ने ये खबर पढ़ी होगी कि लाल बहादुर शास्त्री के आखिरी क्षणों में क्या हुआ था वो KGB को मालूम है, तो क्यों नहीं हमने उनसे मांगा कि आप हमें रिकॉर्ड दीजिए? आप उसे बोल सकते थे ना कि आपने। अब दूसरी बात एक निकल के आ रही है, ये चक्कर वाली बात कि उनको सीजर हुआ है, ये बात सरकारी थ्योरी में नहीं आ रही है। इसका मतलब शास्त्री जी के शायद मौत किसी और कारण से, क्योंकि सीजर का नाम कहीं नहीं आ रहा उसमें, तो दिल के दर्द की, क्योंकि इनको हार्ट अटैक हुआ था, सीजर नहीं हुआ था। लेकिन वो KGB का बंदा कह रहा है कि जैसे सीजर हुआ था तो हम लोग को मालूम चल गया था, बिकॉज हम उनकी आवाज सुन रहे थे। तो KGB के पास रिकॉर्ड होगा, तो आपने क्यों नहीं मांगा उनसे रिकॉर्ड? जब आपने ये देखा कि दिल्ली में बैठी सोवियत एम्बेसी मैगजीन छाप रही है, तो आपको उनको अप्रोच करना चाहिए था कि देखो जी, आप जो हुआ आप जासूसी कर रहे थे, वो तो हम भी करते हैं, लेकिन ये कि जो मिला है वो हमें दो। वो आपके पास रिकॉर्डिंग, उनके आखिरी क्षणों की रिकॉर्डिंग है, वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है।
ये तो मांग सकते थे ये लोग। हमारे विदेश मंत्रालय लोग तो बहुत एक्सपर्ट हैं इन कामों के अंदर, बहुत अक्लमंद लोग हैं, तभी इन्होंने अपने सारे खानदान सेट करवा दिए अमेरिका के अंदर जाकर के लोगों ने। तो ये क्यों नहीं इन्होंने करा, क्यों नहीं पूछा? तो मेरे को सारी प्रॉब्लम जो शास्त्री जी वाले केस में दिखा कि 3 थ्योरियां निकल के आ रही हैं। पहली थ्योरी कहती कि साहब वो तो नेचुरल डेथ से मरे थे। दूसरी थ्योरी कहती कि साहब जहर देके मारा गया। अगर जहर वाली बात को मान लीजिए, जो मैं मान रहा हूं, तो 3 थ्योरियां कि उनको अमेरिकन CIA ने मार दिया, कोरी बकवास। दूसरी थ्योरी है कि रशिया ने मार दिया उनको। मेरा उससे मानना है कि अगर रशिया ने मारा होता तो 2 काम ऐसे थे जो उन्होंने किए जो उनको नहीं करने चाहिए थे। पहली बात है, अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं कभी खुल्लो के उसके बारे में बातचीत नहीं करूंगा। रशियन पोस्टमार्टम ऑफर नहीं करते हमारे को, दे हैड नथिंग टू हाइड। इनफैक्ट उन्होंने कुक को अरेस्ट करके इंटरोगेशन की उसकी, तो रशियंस ने छुपाने की कोशिश की नहीं। और तीसरी जो थ्योरी जो है वो कहती है कि भारत में कुछ षड्यंत्र हुआ के खिलाफ में, जिसके बारे में बड़े मशहूर शब्द थे उस जमाने में। राजनारायण नाम आपको पता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी का नाम इस पर घसीटा और पब्लिकली बोला था कि ये बोलती फिर रही है हर जगह कि वो हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन गया, मैं तो ऐसी रह गई। तो वो जो नाम निकल के आ रहा है, तो मेरा जो प्रॉब्लम आ रहा है कि अमेरिका ने मारा, ये कोरी बकवास है। रशिया ने मारा है, ये साबित नहीं हो रहा। इनफैक्ट रशिया ने तो उल्टा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है ऑफर किया। प्रॉब्लम आ रही है कि भारत सरकार के अंदर गड़बड़ हुई है। तो ये शक की सुई जो है ना वो भारत पे आ रही है कि हमारे यहाँ पे कुछ षड्यंत्र हुआ है। अब प्रॉब्लम ये कि सरकार जब तक, अब जैसे उसका आपको बड़ा सुन के हैरानी होगी, आज से अब उसमें कुछ करने के लिए है नहीं हमें। अब आपको पता है कि प्रधानमंत्री शास्त्री जी की डेथ ताशकंद में होती है, तो वहां पे ऑब्वियसली KGB ने इंक्वायरी की होगी। उनके वहां बड़ी कमाल, मतलब इतना बड़ी बात घटना पहली बार हुआ है कि विदेश में जाकर दूर का दूसरा प्रधानमंत्री मर जाए, तो वो बेचारे अपना रिकॉर्ड बना के रखेंगे सब कुछ, तो वो सब कुछ वहां पर होगा। तो हमें ये करना चाहिए कि हम उनसे रिकॉर्ड मांगे, KGB के रिकॉर्ड दिखाओ जी, आपने इंक्वायरी की होगी, जनता को जानने का इंटरेस्ट है। हमने आज तक पूछा नहीं, हमने आज तक उनसे आज तक कोई पेपर नहीं मांगा हमने वहां से। हमने अपना नहीं दिया तो उनसे कैसे मांगेंगे हम लोग? तो हम ना अपना देते हैं, ना अपने का दो, ना दूसरे का मांगो। अभी आज से शायद 3 साल पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में केस हुआ था शास्त्री जी को लेकर। पहले मैंने भी डाला था, ये दूसरा किसी और ने डाला। तो उसने जब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिया, उन्होंने मुझे भी कोर्ट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को बोला कि आप शास्त्री जी से जुड़े सारे पेपर लेके अपने पास मंगाएं और फिर आप जनता के सामने दिखाएं। कोई आज तक उसको लेकर के, मतलब सूचना के अधिकार, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का एक ऑर्डर आने के बावजूद प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ नहीं बोला इसके आज तक। अच्छा अनुज, लेट्स have 30 minutes, this break from this discussion. We'll come back again. আবার ফিরে এলাম আলোচনায়। আমার সঙ্গে রয়েছেন অনুজ ধর। আমাদের আলোচনা ছিল নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে, আর ছিল লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু রহস্য নিয়ে। তো অনুজ ধর অনেকক্ষণ ধরেই বলছেন, এই ব্যাপারে আপনারা সবাই শুনছেন, তার বই এবং তার রিসার্চ ওয়ার্ক নিয়ে কথা চলছিল। তো নাও অনুজ, I'm interested to know what is your aim right now. You have been working on this field for the last 20-22 years, yes, maybe, and you have written books. So many books were there, and some films were made. People are now, by and large, people are aware of Gumnami Baba, and now curiosities are being raised about Lal Bahadur Shastri's death, mystery to be, unrevealed and all. So now, at this point of time, after 22 years or 20 years of your activities and all, what do you want now? What is your aim? Where you are going to end this, your mission? Manasa, by you mean mission Yeah, the group. Exactly, that is what I want to. The group of which I am part. Yeah. What do we want to achieve is like this is a progression. So there are 2 aims that we have in mind. First, of course, is the aim that we need to establish officially what happened to Subhash Bose. I am of the opinion that he died in India, he was here, and that should be officially. He died in India in 1985. When he was 88 years old, as the so-called Gumnami Baba. So that should be officially recognized. So that is my aim. Officially established. Official government has to accept it. That is my aim. I know he was there, but government is not accepting. Government has to accept that officially. So that is our fight for the truth, and we want to establish it formally. So that is the aim number. And the reason why we have to do this is it is related to the other issue. We also have to. The other aim of ours is
established the fact of history which was concealed from us for all these years. We can talk about it, of course. India's becoming free has to do with Netaji, not Mahatma Gandhi. So Netaji played the most pivotal role in making India free, not Mahatma Gandhi. My aim is to change the narrative. And I would like the system to accept this thing officially. So these are the aims. I mean, we may or may not achieve these aims in our lifetime, but these are the aims we have. First, we want the government to accept officially that Netaji did not die anywhere in any plane crash in Taiwan. He was here, and we would like government to accept, but formally accept that Netaji was the most important freedom fighter of this country, not Mahatma Gandhi. No, one thing, don't you feel that this even if this government accepts and gives recognition and accepts that Gumnami Baba was Netaji Subhash Chandra Bose, he didn't die in a plane crash. Do you really think that it will change the narrative that you are talking about? Oh yes, it will. Because don't forget, if Netaji's death mystery, attracts so much of interest, invites so much of interest, especially among the youth and all that. So ultimately, it goes around his life and times only. So death becomes a means to attract attention to his life and time. So death becomes a very interesting talking point. So to say tomorrow that he was officially government were to accept, of course government would have all the information. They would have his pictures, they would have his records about him. Obviously he was sitting here. I'm sure they have everything because he was communicating with them and so on and so forth in one way or the other. So so once government accepts it, comes out with the entire truth, make documents available and pictures and videos, whatever what they have with them, then obviously it will cause upheaval in this country, because given the eminence of Netaji in public psychology, despite everything government has done to downgrade him for all these years, then public will come to realize, as the whole thing will unfold, this Pandora's box will open, that in gaining freedom, Netaji played the most pivotal role, but the credit was transferred to Mahatma Gandhi. And it is public which will then demand that no, we would like Gandhiji to be sidelined now and given Netaji's due place. So this is going to be a huge thing once they accept he was here. It's going to be really huge thing. I can tell you in Hindi because मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि three generations have grown up and घर में कलेश हो जाएगा कि हाँ मैंने तो ऐसे केसेस देखी कि लोग आपस में रिश्तेदारों की लड़ाई हो जाती है इस बात को लेकर के कि एक आदमी उस पार्टी को सपोर्ट करता है तो उसको सुनने को तैयार नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल हम आपके कलकत्ता में जितने कम्युनिस्ट टाइप लोग हैं वो सुभाष बोस को तोजोर कुकुर बोला करते थे पहले, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लड़ मरेंगे इसमें. तो ये कि इतना मजाक नहीं है. सुभाष बोस की जब बात निकलेगी तो बहुत फ्रिक्शन होगा. जिन के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू फर्म है वो उसको अपोज करेंगे और वो सुभाष बोस के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे कि छुपा हुआ था, ये था, वो था करके. और एक चीज और इनकी गांधी भक्तों की आप ध्यान रखिएगा कि गांधी भक्त जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, इन्होंने दिल्ली में क्या तांडव मचाया था इन लोगों ने. तो ये चुपचाप बैठेंगे नहीं उसकी तंत्र कि ये अपने आप को जितना ये सुलझावा और अपने आप को जितना ये अहिंसक दिखाते हैं, इतना अहिंसक है नहीं ये लोग. इन्होंने जितने शातिर किस्म के लोग हैं कि लड़ाई लड़ी फ्रीडम स्ट्रगल सुभाष बोस ने. जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि कितनी इनकी चालाकी देखी इन लोगों की. अभी प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में नेताजी की मूर्ति लगाई है राजपथ पे, उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया. पहली तो शर्म की बात यह है कि 47 के बाद में इंग्लैंड के राजा की मूर्ति आपने भारत की सबसे इंपॉर्टेंट रोड में लगा रखी है. इन्हें कोई शर्म नहीं आई गांधी भक्तों को जो ये पावर में थे कि वहां पे इंग्लैंड के राजा की मूर्ति का कोई औचित्य नहीं है 47 के बाद से. किसी को टेंशन नहीं, किसी को डिमांड, कोई प्रॉब्लम नहीं था. उसका नाम डोमिनियन स्टेटस था 50 तक डोमिनियन. मैं तो उसकी बात की बात कर रहा हूं, मैं तो 63 की बात कर रहा हूं. 63 में मूर्ति वहां पे थी. उसके बाद में उसका नाम था किंग्सवे. किंग्सवे मतलब राजा का पथ, राजा का मार्ग. इसीलिए उसको राजा की मूर्ति लगी तो नाम किंग्सवे था. तो ये जो बुल्गारियन में ख्याल से इंडिया में 55-56 में आया था, तो थोड़ी उसकी शर्म लिहाज, भगवान भला करे, उसकी शर्म लिहाज करके इसका नाम उन्होंने हिंदी में कर दिया, राजपथ कर दिया. लेकिन है वो किंग्स, बेसिकली किंग्सवे का नाम है हिंदी. किंग्सवे हिंदी में राजपथ. कौन सा राजा भैया, राजा तो चले गए लेकिन इनके दिलों में बैठे हुए इनके गांधी भक्तों के महाराज जो अपने वो किंग जॉर्ज बैठे हुए इनके सारी जिनकी इन्होंने चाटुकारिता इन्होंने किया अंग्रेजों की बैठ करके. गांधी जी खुद बोलते थे कि हमें यूनियन जैक लगाना है फ्री भारत के फ्लैग में, इंडिया के फ्लैग के अंदर. ये सब बातें रिकॉर्ड के ऊपर है. तो किसी को, इनको गांधी भक्तों को जो देश पे राज कर रहे थे, राजा की मूर्ति से कोई ऐतराज नहीं था वहां पे. ठीक है. 1965 में नेताजी के फॉलोअर्स ने जाकर के उस मूर्ति के नाक कान तोड़ दिए
और मुंह पे काली पोती और ऊपर से नेताजी का फोटो लगा दिया, और तब लंदन में मचा उसको लेके बवाल, और तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये मूर्ति हटाने का फैसला लेना पड़ा, और 1968 में मूर्ति वहां से हट गई। तो इसका मतलब 1947 से लेकर के 1965 तक वो मूर्ति वहां लगी रही। किसी गांधी भक्त को वो मूर्ति हटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई उनको इंटेंशन नहीं था। वो मूर्ति हटी है नेताजी के फॉलोअर्स की वजह से। लेकिन जैसे ही वो मूर्ति हटी, ये गांधी भक्त वहां पहुंच गए, ये बोलते कि महात्मा गांधी की मूर्ति यहां लगेगी। क्यों भैया, 47 के बाद से तुम 65 तक तुम लोग कौन सी दुनिया में रह रहे थे? अगर महात्मा गांधी की मूर्ति तुम 47 में लगाते तो हम अपोज नहीं करते, पर आप अंग्रेज की मूर्ति वहां लगा के बैठे हैं, उसको आपने हटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हटाई हमारे वजह से। तो एग्जैक्टली यही कहानी सन 46 में घटी थी और उसके टाइम में घसी थी कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ने का टाइम आया था तो सबसे आगे सुभाष बोस के आदमी थे आईएनए वाले, और जब इंडिपेंडेंस मिलने का टाइम आया तो ये खड़े हो गए लाइन में कि हमें हमें दे दो बैठ करके। तो ये लोग रेवड़ियां खाने में एक्सपर्ट है। इन लोगों ने पावर हथिया ली वहां जाकर के। पावर हथियाने के बाद में सबसे बड़ा जो इस देश का जो इन्होंने हमारे पे इन्होंने गलत नैरेटिव जो हमारे पे चेपा है, जिसको कभी इनको आने वाले लोग माफ नहीं करेंगे, वो जो दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ये कोरी बकवास है। सारे हमारे जितने रेवोल्यूशनरी थे, हमारे विप्लवी थे जितने, ये सबका मजाक उड़ाने वाली बात है ये कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। क्यों भैया, भगत सिंह नहीं था क्या हमारे देश में? कि चंद्रशेखर आजाद नहीं थे क्या? ये इतने विप्लवी नहीं थे? बादल बिनो देश नहीं थे क्या? आप बैठ के अंग्रेजों को प्रमोट करेंगे देश के अंदर? ये जो आपका जो नैरेटिव, सरकार का नैरेटिव अब बन गया, ये इसी को ये सुबह शाम प्रमोट करते हैं। और एक दिल्ली में रैकेट चल रहा है बड़ा जबरदस्त। तो रैकेट ये है कि अंग्रेजों को अच्छा दिखाओ, और पहले इनको भूख थी, जितने हमारे बड़े बड़े साहब लोग हैं, ये पुराने राय बहादुरों के बच्चे जो बड़े बड़े अफसर बन के बैठे हैं दिल्ली में, आपको पता ही, जितने हमारे, चाहे वो उस जमाने के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे आपके इंटेलिजेंस चीफ हो, सब टॉप के लोग, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सबके, ये सब लोग डिप्लोमेट, ये सारे के सारे उनके बच्चे थे जो अंग्रेजों के टाइम पे कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे ये लोग। ठीक है जी, ये बन गए होकर के। इनका बेसिक एम ये था सन 50 के दशक में कि हमको अपने बच्चों को विराट भेजना पढ़ने के लिए, और सबने भेज भी दिया। किसी का बच्चा कोई भारत में नहीं है। इन्होंने देश के लोगों को बरकलाया है कि खादी पहनो। वो बोलते थे ना पहले अंग्रेजी मीडियम स्कूल छोड़ दो, तो हम पहने खादी और तुम्हारा बच्चा जाए पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड के अंदर, ताकि हम गुलाम तुम्हारे बन जाएं। इन्होंने पूरे देश को बरकलाया है, और इनके दिल में ये भूख थी कि हमको वेस्टर्न कंट्रीज में अपने बच्चे सेटल करने विलायत के अंदर। इन लोगों ने इसलिए ये पूरा ये प्रमोट किया, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, क्योंकि ये गाना गाने से, ये कहानी बोलने से अंग्रेजों की इमेज अच्छी हो जाती है। अब उनके सारे वॉर क्राइम्स खत्म कर देते हैं इन झटके के अंदर। अभी प्रॉब्लम आ रही कि इस एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया। पहले ये साहब लोग चाहते थे कि हमारा बच्चा विलायत मतलब इंग्लैंड में सेटल हो जाए। 1960s के बाद जब से अमेरिका खुल गया भारतीयों के लिए, इनको भूख हो गई कि हमारे बच्चे अमेरिका में सेटल हो जाए। सबने बच्चे अपने वहीं सेटल कर रखे, यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नॉन लैंड कंट्री हो गया, फलाना ढमकाना, ये करके अपना लौंडा जो है वहां सेट कर रखा है इन लोगों ने, हर जगह हम लोगों ने। तो ये पूरा सिस्टम जो है उसी पे चल रहा है कि हमने अपने बच्चों को वेस्टर्न कंट्री में रिलोकेट करना है। जो चीज वहां चलेगी वही चीज हम प्रमोट करेंगे। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि नेताजी को आप अमेरिका में प्रमोट नहीं कर सकते, सावरकर को आप अमेरिका में प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन गांधी जी को प्रमोट कर सकते। गांधी जी की पूरी कहानी है अंग्रेजों को अच्छा दिखाती है। तो ये बड़ा सोच समझ के इन्होंने बड़ी चालाकी से, ये जो पूरी रूलिंग क्लास जो बैठी हमारी यहाँ पे, ये इन्होंने ये हरकत की हुई है, और ये नैरेटिव हमको बदलना पड़ेगा। तो हम कुछ कामयाब हुए हैं इस मामले में। लेकिन वन पॉइंट, ये जो नैरेटिव तुम बदलना चाहते हो, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपना फैमिली, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी मच कीन इन एक्सेप्टिंग योर। नहीं, ऐसा नहीं है। नेताजी की अपनी फैमिली में, जहां तक मैं बताऊं कि अगर आप नेताजी की फैमिली की बात करें तो बसु एंड ऑल, नहीं वो तो बाद में आते हैं। आपने फैमिली की बात बोली, नेताजी की एक भी भाई और बहन ने एक्सेप्ट नहीं किया कि उनकी ब्रह्मकश में डेथ हुई है। एक भाई एक बहन ने एक्सेप्ट नहीं किया। सारे भाई बहन तो लेटर भी लिखा था, बिल्कुल भाई बहन किसने एक्सेप्ट नहीं किया। नेताजी का एक भी भतीजा भांजा ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो उनका डेथ हुआ था। सिर्फ उनका एक भतीजा, वो स्टार्टिंग में ये शिशिर कुमार बोस जो कांग्रेस पार्टी में चला गया था, उसने बोला कि प्रेमकाश में डेथ हो गई है। अभी जो आजकल जो नौटंकी हो रही है, आपने सुगतो बोस का नाम लिया। सुगतो बोस जो है, देखिए नेताजी की फैमिली में अलग अलग धड़े बने हुए हैं। एक कम्युनिस्ट पार्टी का धड़ा है, एक कांग्रेस पार्टी का धड़ा है। तो ये सुगतो बाबू कांग्रेस पार्टी के धड़े के हेड आएंगे। अच्छा। तो ये कांग्रेस पार्टी की लैंग्वेज बोलता है, ये घर की लैंग्वेज नहीं बोलता। अच्छा। तो ये अलग है। और दूसरा है कि इनके परिवार के अंदर भी इतनी नौटंकी है उसके अंदर कि अगर आप उस पर कोई टीवी सीरियल बना दो इनकी नौटंकियों के ऊपर, या भी जिनके आप लोग ले रहे हैं, तो ये एकता कपूर के सीरीज जो है फेल हो जाएंगे सामने। इतना मजेदार कहानी उसके ऊपर है कि फैमिली में कितना नौटंकी अंदर चल रहा है करके, कभी कुछ बोलें कभी कुछ बोलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट ना लें,
थोड़ा गूगल करके देख लें। और परिवार के लोग, एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि परिवार के लोगों को मोटा मोटा ये मालूम है कि वो भारत में थे। वो इसको छुपाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ गई तो ये सामने निकल करके आएगा कि वो भारत में थे और उनका रवैया अपने परिवार की तरफ अच्छा नहीं था। उनको उनके हिसाब से उनके परिवार ने उनकी मदद नहीं करी। तो इस शर्म की वजह से ये हरकतें कर रहे हैं उल्टी सीधी बैठ करके लोग आज। इनको मालूम है, इतने बेवकूफ ये लोग नहीं है। वो किसी भी बेवकूफ आदमी को समझ में आ रहा है कि डीएनए टेस्ट में अगर गड़बड़ी हुई है तो उसका मतलब क्या है। आपको लगता है कि जस्टिस मुखर्जी ने सिर्फ मुझे ही बताया कि डीएनए टेस्ट में गड़बड़ हुई है? उसने फैमिली के लोगों को भी बताया कि आपके डीएनए में गड़बड़ हुई है। तो वो क्या बेवकूफ है क्या? उन्हें पता नहीं है क्या? ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी, लेकिन जैसे ही ये मुद्दा आगे बढ़ेगा, डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, ये पूरी कहानी निकल के आएगी और लोग इसमें फिर पहचानेंगे अपने की क्या सच्चा क्या झूठ है। This is very interesting. These two subjects, Netaji disappearance mystery and Lal Bahadur Shastri's death mystery, and you have been doing a fantastic job. You have दादा, मैं आपको क्योंकि अभी मेरा कल लेक्चर है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं क्या करता हूं कि लोगों को पता नहीं है। मैं लेक्चर देने नहीं आता कहते, मैं एक ऑडिटोरियम में मैं आऊंगा, मेरा दोस्त चंद्रचूड़ आएगा, हम लोग एक बड़े प्रोजेक्टर में स्क्रीन लगा करके आपको वीडियो दिखाएंगे, आपको अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि प्लेन क्रैश में सुभाष बोस की डेथ हो गई थी, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या बोला था, तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाया जाएगा ताकि आप बोलने के काबिल न रहो कि मैं गलत बोल रहा हूं। तो डॉक्यूमेंट के साथ में, वीडियो के साथ में, थोड़ा हंसी मजाक के साथ में एक पूरा बड़ा इंटरेस्टिंग पैकेज बन जाता है। तो लोग 2-3 घंटे आकर के ऐसे देखते हैं जैसे फिल्म देख रहे हैं बैठ के, बड़ी मजेदार सी। तो लोगों को आनंद आता है, क्योंकि देखिए अगर आप अपनी ऑडियंस को एंटरटेन नहीं कर सकते तो आपको, क्योंकि हम लोग को भी उनको हिस्ट्री पढ़ानी है, लेकिन हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि उनको मजा आएगा। और देन पुरानी घटनाओं को हम नई घटना से जोड़ के समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहानी की डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हो रहा, तो नई घटना, क्योंकि ताकि लोग समझ पाए इस बात को, क्योंकि ये सारी घटनाएं बहुत पुरानी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जब जैसे आप मैं और बातचीत कर रहे हैं तो हमारे पास में वीडियो नहीं है दिखाने का, लेकिन जब मैं प्रेजेंटेशन देने बैठता हूं, अपना लेक्चर देता हूं, तो लोगों को वीडियो दिखाता हूं, फोटो दिखाता हूं, तो उससे जनता अच्छा समझती है और एंजॉय बहुत करती है। तो ये तब कहानी बहुत खुल के पूरी सामने निकल के ज़्यादा अच्छी आती है, और शायद वो एक ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बशर्ते कि हम दोनों आपस में 1-to-1 बात करें। So let's end our discussion here. It was really enriching to listen to you. Every time when I talk to you, every time I listen to you, these new windows get open for us and all. আমার মনে হয় দর্শক শ্রোতা যারা আছেন তারা এতক্ষণ যা শুনলেন আপনারাও অনেক এনরিচড হয়েছেন, আপনাদের ভালো লেগেছে। আগামীকালকে অনুজধর রবীন্দ্র ভবনে একটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করবেন, নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের প্রাক্তনীদের প্রোগ্রাম। আপনারা যাবেন নিশ্চয়ই, ভালো লাগবে। উনি ওখানে আরও ডিটেলসে ভালো করে বলবেন এর সম্পর্কে। আগেও বলেছেন একবার এসে, কালকেও বলবেন, কালকে আরও বেশি করে বলবেন, অনেক বেশি তথ্য নিয়ে আসবেন আপনাদের সামনে, আপনাদের ভালো লাগবে। আমাদের এই ছোট্ট ইন্টারভিউ স্টুডিওতে তো এত কিছু বলা সম্ভব নয়, সময়েরও ইসে থাকে। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ।